Here we are on lecture 3 of calculus, where we'll be dealing 9 more questions. So, here, question number 19 says, let R be the region in the first quadrant under the graph of y is equal to x by x square plus 2 for x lying from 0 to root 6, both included. First question says, find the area of R. Second question says, if the line x equal to k, so somewhere k is there, divides R into two regions of equal area, what is the value of k? See what is the average value of y is equal to x by x square plus 2 for the interval x lying from 0 to root 6. So how do we approach this? A solution, we can take some other pen. Say here, first find the area. So area will be given by dA, a small part of the area will be given by y dx, and it can be integrated to get the total area. So y dx, what is y here? X by x square plus 2 integration of dx. Now from where to where? We have to find the area from 0 to root 6. Now if x square plus 2 is equal to t, so 2x dx will be dt and dt by t. So therefore 1 by 2 dt by t, that is 1 by 2 ln t, and 1 by 2 ln t, where this will vary from uh, so when x is equal to 0, so t is equal to 2, and when x is equal to root 6, so this will be 6 plus 2 8. So the value is half ln 8 minus ln 2, that is ln 8 by 2, that is ln 4, which can be written as 2 chi square, so 2 by 2, therefore the value will be ln 2. That is the answer. Now it says again, क्वेश्चन नंबर बी, ये क्या कह रहा कि लाइन x इक्वल टू के जो है वो r को दो रीजन में डिवाइड कर रहा जिसका इक्वल एरिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो सिंपल सी बात है कि जीरो से मान लेते हैं कोई एक वैल्यू के है और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स है, ये एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, जो एरिया बन रहा है वो एल एन टू का आधा है, हाफ. और के कहाँ से कहाँ होना चाहिए? इट शैल बिलोंग फ्रॉम 0 टू रूट 6. So yeah, and both included. Now, so the value is again x dx by x square plus 2. कैसे होगा? हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t मान रहे हैं, तो सेम तरीके से इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा एल एन के स्क्वायर प्लस 2 माइनस एल एन 2. कैसे किया इंटीग्रेट? सेम प्रोसीजर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टी को टी माना एंड द उसी तरह से अपर और लोअर लिमिट चेंज करा है. सो दिस विल बी इक्वल टू half of ln 2. Now this half is going to get cancelled, so therefore ln k square plus 2 by 2 will be equal to what? This is equal to ln 2. So therefore k square, now both side ln is there, so we can compare k square by 2 plus 2 by 2 is equal to 2, therefore k square is equal to 2 and k is equal to root 2. It cannot be minus root 2. Why? Because k must lie from 0 to root 6. हो गया, तो k का मान भी आ गया. क्वेश्चन नंबर सी says, what is the average value? Now how do we find the average value? सिंपल सी बात है, y average का मतलब क्या होगा यहाँ पे? Y average can be said as integral 0 to root 6 x by x square plus 2 dx, और नीचे कितना हो जाएगा टोटल समेशन, तो रूट 6. सो इसका वैल्यू तो हम लोगों का आ गया था, कितना आया था? एल एन टू, नीचे कितना है? रूट 6. दैट इज द आंसर. नाउ सी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी मेंस आल्सो. अब मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, बट इसमें क्या किया जा सकता है, ऑप्शन डाला एंड देयरफॉर अ न्यू क्वेश्चन कैन बी मेड. So please do see this type of questions and solve it. It will help you out. Now, question number 20. It says, let f be a differentiable function defined for all real numbers x with the following property.
एफ डैश एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। एफ डैश वन कितना है, 6। एफ डबल डैश वन कितना है, 18। और इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स कितना है, 18। हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स। ओके, विल राइट स्टेप वाइज। स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। और एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम निकालें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2ax प्लस बी। अब हमें क्या क्या दिया है, एफ डैश वन ये दिया हुआ है 6। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 पुट करें इसमें तो a प्लस बी का वैल्यू 6 दिया है। और एफ डबल डैश वन कितना दिया हुआ है, एफ डबल डैश वन दिया है 18। सो इट मीन्स 2a प्लस बी दिया हुआ है 18। सो वी आर गिवन इक्वेशन 1, वी आर गिवन इक्वेशन 2। सो अगर दोनों को सॉल्व किया जाए तो 2a प्लस बी 18 और a प्लस बी कितना हो गया 6। सब्ट्रैक्ट इट, सो a इज 12। a कितना हो गया 12 और b कितना हो गया 6 माइनस 12 दैट इज -6। सो हमारे पास a और b के वैल्यू आ गए। तो अगर ये आ गया तो हमें तो एफ डैश एक्स पता चल ही गया। एफ डैश एक्स कितना हो गया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब एफ डैश एक्स आ गया तो एफ एक्स भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x 12x स्क्वायर माइनस 6x का इंटीग्रल dx। ठीक है, सो कितना हो गया ये 12x³ बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस c। सो c इज वेयर c इज सम कांस्टेंट। अब हमें बोला क्या क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। ये दिया हुआ है हमें कितना, दिस वैल्यू इज गिवन एज 18। सो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स क्या है 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस सी एंड दैट इज dx। ये कहाँ से कहाँ 1 से 2 तक, इसका वैल्यू कितना है 18। सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेंट, x³ dx कितना हो जाएगा x टू पावर 4/4, 4 कैंसिल। नाउ x³ बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ प्लस cx और ये कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 दैट इज इक्वल टू 18। नाउ सो वैल्यू कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 प्लस 2c and this is minus 1 minus 1 plus c is equal to 18. So what is the value, the value is 8, 1 gets cancelled and 2c minus c, so 8 plus c is equal to 18, therefore c is equal to कितना हो गया 10। Hence the final value of fx will be 4x³ minus 3x square plus 10 और हमें यही निकालना था, find fx। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 says let f be the function defined by f of x equal to x square minus 3 e to the power x for all real numbers x, for what value of x is f increasing। और क्या बोले, find the x coordinate of each point of inflection of f। okay, find the x and y coordinate of the point if any where fx attains its absolute minimum। ठीक है, तो अप्रोच क्या होगा, पहला फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स इज एफ इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन यू बी फंक्शन है, तो यू बी फंक्शन में क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 रहेगा एंड दिस इज ई टू द पावर एक्स। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 3 which can further be simplified as x square plus 3x minus x, so x plus 3 and x minus 1, so this is x minus 1। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स देखने होंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो जीरो तो दो ही जगह पे हो सकता है, या तो x इक्वल टू -3 पे या तो x इक्वल टू 1 पे। तो इस केस में वी सी द साइन चेंज, -3 1, 1 से बड़ा इट्स गेटिंग प्लस, अगर 1 से बड़ा पुट करें तो ये पॉजिटिव आ रहा है, फिर इसके बीच में नेगेटिव और -3 से छोटा दैट इज इट इज़ गेटिंग -3 से छोटा फिर से प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है,
इंक्रीजिंग कब है? इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एफ इंक्रीज होने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्स लेस इंक्रीजिंग बोला है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब -3 पे 0 वैल्यू ले रहा है तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक्स लेस देन इक्वल टू -3 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब क्या हो गया? क्वेश्चन बी, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ एफ। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन करो और ये देखो कि उसका कॉन्केविटी कब चेंज हो रहा है, मतलब उसका साइन कब चेंज हो रहा है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो बी बेसिकली इसमें हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, एफ डबल डैश एक्स। और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे कैसे? हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सो ई टू द पावर एक्स कॉमन एंड देन दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सो दिस इज द वैल्यू। अब हमें तो ये चेक करना है कि सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो ज़ीरो जहाँ पे हो रहा है तो उसके लिए ये तो जीरो होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 जीरो होगा। तो x कितना हो गया? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 प्लस 4 दैट इज 20 √20 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू कितना हो गया? 20 का मतलब 4, 2 √5, तो -2 प्लस माइनस √5। सो द वैल्यू इज -2 माइनस √5 एंड -2 प्लस √5। सो अब -2 प्लस √5 से कोई बड़ा वैल्यू ले लो, जैसे 3 ले लिए। तो इफ़ आई टेक 3, सो दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव एफ डबल डैश एक्स। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, अगेन दिस इज पॉजिटिव। तो साइन चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है? साइन चेंज दो जगह पे हो रहा है, प्लस से माइनस यहाँ पे और माइनस से प्लस यहाँ पे। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ हो गया? सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज -2 प्लस माइनस √5, दो जगह पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। नाउ सी, अब क्या कहा गया है सी में? Find the x and y coordinate of the point, if any, where fx attains its absolute minimum. अब मिनिमम चेक करने के लिए हम ये देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कहता है कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ कहाँ हुआ है? -3 और -3 और 1 पे। तो इस केस में मैक्सिमा कहाँ पे हुआ था और मिनिमा कहाँ पे हुआ था? देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, मान लो कोई भी वैल्यू है -3 पे, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ऐसा जा रहा है, और 1 पे कुछ ऐसा गया होगा, मतलब जो भी है फंक्शन। तो इस केस में नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाला मतलब ये मिनिमा देता है। तो एक बार हम 1 पे चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ई टू द पावर एक्स, वो -3 से छोटा के लिए हमेशा इंक्रीजिंग है और 1 से भी बड़ा के लिए हमेशा इंक्रीजिंग है। इसका मतलब वो डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है? -3 से लेके 1 तक। और यहाँ पे लोकल मिनिमा किस पे आ रहा है? 1 पे। तो जस्ट चेक एट 1 एंड दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव मिनिमा कहाँ पे आएगा? 1 पे। और 1 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सो x इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -3 ई टू द पावर x का वैल्यू f ऑफ 1 पे कितना आ रहा है? 1 - 3 इंटू ई पर पावर 1 दैट इज इक्वल टू -2e। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question says, let R be the shaded region between the graph y is equal to 3 by x and y is equal to 3x by x square plus 1 from x equal to 1 to x equal to √3 as shown in the figure. Find the area of the R. So this figure y is equal to 3 by x, ये फिगर है y इक्वल टू 3 बाई एक्स का, और दिस फिगर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो हाउ डू वी गेट टू नो? जब x जीरो रख रहे हैं, सो दिस y इज ऑल्सो कमिंग एज ज़ीरो। अब हमें निकालना क्या है? बीच का शेडेड रीजन। तो अगर शेडेड रीजन की बात की जाए तो इसमें कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ y dx। अब y dx का मतलब क्या है यहाँ पे? y2 माइनस y1 और dx। और रीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है? x इक्वल टू 1 से √3 तक। सो 1
2√3। सो y2 माइनस y1 ग्राफ में ऊपर कौन है, 3/x माइनस 3x/x² + 1 और इंटीग्रल ऑफ dx कहाँ से कहाँ, 1 से √3। सो व्हाट इज द वैल्यू, 3/x dx/x क्या होगा, ln x, तो 3 ln x कहाँ से कहाँ, 1 से √3 माइनस 3 बाहर निकाल लो, x dx x² + 1 को t मानो तो 2x dx dt हो जाएगा, तो 3/2 dt/t, सो दैट इज ln t, दैट इज ln x² + 1, और ये भी वैल्यू कहाँ से कहाँ, 1 से √3। सो व्हाट इज द वैल्यू, 3 ln √3, दैट इज 3/2 ln 3 माइनस 1 0 हो गया, तो माइनस 3/2 ln of 4, that is 3 ln 2, so this will be 4 के जगह 2 ln 2 लिखते हैं, और माइनस माइनस प्लस, so this will be 3/2 ln 2, so what is the value, minus 3 ln 2 plus 3/2 ln 2, so 3/2 बाहर निकाल लो, ln 3 minus ln 2, so the value is 3/2 into ln 3/2. Done. Next question says the figure above represents, okay, the figure is not given here, तो ये figure है, represents an observer A watching balloon B as it rises from point C, so this is point C somewhere, the balloon is rising at a constant rate of 3 meter per second, so and the observer is 100 meter away from point C, so let this angle be theta. Now what is the question, find the rate of change of x at the instant when y is equal to 50, और दिया क्या है, ये सपोज y है, ये x है, dy/dt दिया हुआ है 3, that is 3 मीटर पर सेकेंड, so this is given as 3 मीटर पर सेकेंड, पूछा गया है dx/dt कब, जब y 50 हो, now x square is equal to, so x square plus y square, अच्छा इसको समथिंग मान लेते हैं h, ऐसा कर लो, से दिस वेरिएबल, इसको x मान लो, ये y मान लो, और ये तो 100 दिया है, तो वी कैन से x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, डिफरेंशिएट 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 2y dy बाई dt प्लस 0, 2 गेट्स कैंसल्ड, तो dy बाई dt कितना दिया हुआ है 3, और हमें dx बाई dt चाहिए, तो dx बाई dt और dy बाई dt कितना दिया है 3, सो दिस इज 3 एंड y 50 है, तो जब y 50 है तो x कितना होगा 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, so 50 स्क्वायर इज टेकन कॉमन, so 4 प्लस 1 that is equal to 50√5, तो x का वैल्यू 50√5 है, so dx by dt, so this will be 50√5, अच्छा dy by dt 3 है, बट y का वैल्यू 50 है यहाँ, so y वैल्यू इज 50, so dx by dt कितना हो जाएगा, this will be 3/√5. Next question, B says find the rate of change in the area of the right triangle BCA at the instant when y is equal to 50. So dA by dt, we have to find dA by dt when y is equal to 50. तो एरिया अभी कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज A
is equal to half into 100 into y, that is equal to 50y. a is equal to 50y. निकालना क्या है, dA by dt. So dA by dt is equal to 50 into dy by dt. dA by dt कितना है, ये तो निकालना है. y कितना है, 50. सो 50 और dy by dt का वैल्यू 3 था, 3 मीटर पर सेकेंड. So the change of the area is 150 meter per second. So this is 150 और एरिया चेंज हो रहा है तो मीटर इंटू मीटर, दैट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सी क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन थीटा एट द इंस्टेंट व्हेन y is equal to 50. So we have to find the rate of change in theta. तो tan theta यहाँ पे कितना है, y by 100. So tan theta is given as y by 100 और चेंज किसका निकालना है, डी थीटा बाई डी टी. सो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/100 dy by dt. So therefore d theta by dt will be equal to cos square theta and dy by dt कितना है, 3, that is 3/100. So कब निकालना है, जब y 50 है. सो अगर y 50 है तो इस केस में cos थीटा कितना होगा, सो d थीटा बाई डी टी एट y is equal to 50 will be वैल्यू कितना हो जाएगा cos थीटा का, ये 50 है ये 100 है तो ये कितना था, दैट इज 50√5. तो cos थीटा कितना होगा, 100 बाय 50√5 दैट इज इक्वल टू cos थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा विल बी 4/5 into 3/100. So therefore this will be 3/125 and that's the answer. So next question, let f be a differentiable function defined for all x greater than or equal to 0 such that f of 0 is equal to 5 and f of 3 is equal to -1. Suppose that for any number b greater than 0, the average value of fx on the interval x greater than or equal to 0 less than or equal to b is f0 plus fb by 2. So find fx dx from integral 0 to 3. Prove that f dash x equal to fx minus 5 by x for all x greater than 0 and using part b find fx. क्वेश्चन फिर से अगर देखो तो इसमें दिया क्या क्या है, f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f ऑफ 0 दिया है 5 एंड f ऑफ 3 दिया है -1. अब बोला क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स कहाँ से, 0 से b इज f ऑफ 0 प्लस एफ बी बाई 2. तो अगर हम 0 से b की बात करें तो यहाँ पे दिया है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 से 3. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका एवरेज निकालें, सो हाउ डू वी फाइंड द एवरेज, सिंपल सी बात है, y एवरेज विल बी गिवन एज 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 और ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2. अब f ऑफ 0 कितना दे रखा है, 5, f ऑफ 3 कितना दे रखा है, -1 डिवाइडेड बाई 2. सो कितना हो गया, 5 - 1 दैट इज 4/2. तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स कितना हो गया, 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स प्रूफ करना है कि एफ एक्स माइनस 5 बाई एक्स होगा. तो शुरू कहाँ से कर सकते हैं, हमें पता है 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, मतलब एवरेज निकाल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स, ये कितना होगा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ एक्स
डिवाइड बाई 2 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। या उसके बाद अगर ऐसा सोचा जाए कि इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी कितना हो जाएगा। सो एफ ऑफ 0 कितना दिया है 5, और एफ ऑफ एक्स को रहने दो डिवाइड बाई 2, और ये जो x था इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर लिया। सो बचा कितना, इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स एफ टी डी टी इज गिवन बाय 5x प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो अब हमें एक बात पता है क्या, कि यहाँ से इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स एफ टी डी टी का वैल्यू कितना था, ये था अगेन दिस विल बी इफ़ आई मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डैश एक्स और एफ एक्स चाहिए। तो बाय लेबनीज थ्योरम, अगर लेबनीज थ्योरम इसमें लगाया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, और ज़ीरो के लिए तो ज़ीरो ही हो जाएगा तो डिफरेंशियल रहने दो। इस साइड में क्या करो, हाफ 5x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 एक्स एफ एक्स, तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया, दैट इज फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स मिल जाएगा कितना, दिस इज 5/2 प्लस x/2 एफ डैश एक्स, और इस तरफ कितना हो गया एफ एक्स माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ x/2। सो 2 गेट्स कैंसल्ड, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज सी सेज, सी सेज यूजिंग पार्ट बी फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई माइनस 5 लिख सकते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई माइनस 5 बाई एक्स। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। तो डी वाई बाई वाई माइनस 5 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0। इफ इंटीग्रेटेड, सो इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, एल एन वाई माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब मिलेगा कैसे सी, तो हमें कुछ वैल्यू तो दिया हुआ है, क्या दिया है, जैसे 3, -1 एफ 3, -1 पे वैल्यू कितना है, देखो एफ ऑफ 3 - 1 है, तो इसका मतलब जब जब x3 है तो y कितना है -1, तो इस केस में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सी का, एल एन -1 - 5, सो एल एन 6 is equal to ln3 plus c, so this will be ln2, ln2 is equal to c, therefore कितना वैल्यू हो जाएगा, ln y minus 5 mod of y minus 5 is equal to ln x plus ln2, so ln2x, so या तो क्या हो गया y minus 5 हो गया 2x, या फिर हो गया y minus 5 is equal to -2x। बात यह है कि हमें दोनों चीज़ देखना पड़ेगा कि 3, -1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जैसे -6 और 6, तो ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सो y - 5 इज इक्वल टू -2x ही सेटिस्फाई हो रहा है, सो दिस सॉल्यूशन इज डिस्कार्डेड। तो व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, द फाइनल सॉल्यूशन इज y - 5 इज इक्वल टू -2x फॉर सी। तो बोला क्या गया था, एफ ऑफ एक्स फाइंड करने, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 - 2x, that is the answer. Done. Next question says, let f be the function f of x equal to x³ - 7x plus 6। ठीक है, तो फाइंड जीरोज ऑफ f, पहला तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, f of x, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, और कौन सा मेथड, रैशनल रूट मेथड।
तो रैशनल रूट थ्योरम से सबसे पहले सिंपल है, पहले हम ज़ीरो चेक करते हैं। ज़ीरो पे तो 6 आ रहा है, नहीं लेगा। 1 एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 माइनस 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ ऑफ 1 0 दे रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो अब कितना बच गया, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 6 रहेगा। और हमें नहीं पता, यहाँ पे ए एक्स लिख देता हूँ, तो ए तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, एक्स से कम या फिर एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन कर लो, या फिर एक्स से। तो एक्स स्क्वायर कैसे कैसे आ रहा है, तो -1 और ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस वैल्यू शैल बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है नहीं यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। सो इवेंचुअली क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। सो द वैल्यू इज एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या क्या हो गए, सो ज़ीरोज़ आर 3, 1 2 और -3। सो ये हो गया। नाउ बी, राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू -1। तो एट एक्स इक्वल टू -1 के लिए, तो हमें एक्स इक्वल टू -1 के लिए एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखने के लिए तो हमें वाई और एक्स चाहिए, फिर तो एफ डैश निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ -1 कितना आ रहा है, सो दिस इज -1 का क्यूब, -1 किस पे पुट कर रहा हूँ, दिस ए, इक्वेशन ए पे। तो -1 प्लस 7 प्लस 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 12। सो अब ये 12 आ गया, इसका मतलब हमें पॉइंट तो मिल गए, कौन से, -1, 12। अब हमें इस पर क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 7, और कहाँ पे निकालना है, ऑफ कोर्स -1 पे, तो दिस विल बी 3 माइनस 7 दैट इज -4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, y -12 इज इक्वल टू -4x प्लस 1। सो द वैल्यू इज y इज इक्वल टू -4x और -4 प्लस 12 दैट इज +8। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -4x + 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी सेज find the number c that satisfies the conclusion of the mean value theorem for f on the closed interval 1, 3। सो सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए 1 पे वैल्यू देखते हैं, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 दिस इज 1 0 है, और एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 भी 27, सॉरी 3 9 27 27, और एफ ऑफ 3 मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है। सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 3 आ रहा है तुम्हारा 3 का क्यूब 27 प्लस 33 33 दैट इज एफ ऑफ 3 12। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में, अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ये तो कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल 1, 3 पे। तो एक एफ डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डैश सी सम सी लाइंग फ्रॉम 1 to 3, एक एफ डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका वैल्यू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 होगा। ठीक है, सो एफ ऑफ 3 कितना था, अभी हम लोग देखे थे 27, एफ ऑफ 1 कितना था, सो दिस वाज, सॉरी एफ ऑफ 3 कितना था 12, एफ ऑफ 1 कितना था 0। सो 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 शैल बी इक्वल टू एफ डैश सी, और एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 7, डिफ्रेंशिएट कर लिए। सो 3c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13, c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13/3, एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू √13/3, एंड √13/3 लाइज कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग 2, c लाइज फ्रॉम 1 to 3, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, it says let R be the region in the first quadrant enclosed by the graph of y is equal to √6x plus 4। तो रूट का ग्राफ ऐसा रहता है, द लाइन y is equal to 2x, y equal to 2x ये है, और
क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y 2 है, तो ये हो गया 0,2 और यहाँ से एक रूट का ग्राफ गया है और बोल क्या रहा है एंड द y एक्सिस। सो सिंपल है, तो फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, तो एक स्मॉलर एलिमेंट चुनते हैं जिसको हम बोलेंगे y2 माइनस y1 dx और इसका इंटीग्रेंट निकाल देंगे। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो y dx है, इसका मतलब ये मिलेगा कहाँ पे जाके, तो दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे मिलेगा वहीं तक हमें एरिया निकालना है टोटल, ये टोटल एरिया। तो रूट ऑफ 6x प्लस 4 shall be equal to what, 2x, so therefore 6x plus 4 shall be equal to 4x square। तो यहाँ से 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, 3 कट रहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 शैल बी इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो गया, दो वैल्यूज़ आएंगे, या तो 2x x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। सो एक आ रहा है x इक्वल टू -1/2, वो तो लेंगे नहीं, तो x इक्वल टू 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू होंगे वो पॉजिटिव साइड में इंटरसेक्शन है, तो इसीलिए x इक्वल टू 2 ले रहे हैं। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेके 2 तक, और तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, रूट ऊपर वाला कौन है, रूट, तो y2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 6x प्लस 4 और माइनस y1 कितना हो जाएगा 2x, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ होगा dx। सो दिस विल बी फ्रॉम 0 to 2। सो द वैल्यू इज 6x प्लस 4 पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 6 और कितना पर पावर 3/2 या, सो माइनस 2x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया और कहाँ से कहाँ तक, सो द इंटीग्रेंट इज फ्रॉम 0 to 2। जब 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 to 12 16 16 16 मतलब 2 16 2 to the power 4, तो 2 to the power 6, 2 to the power 6 मतलब 64, तो 64/9 और ये कितना हो गया, डेट इज़ -4। और जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, ये हट गया 8 8 8/9, so this will be 8/9। what is the value, 64 minus 8, that is 56 and 36, so the answer is 20/9। next, let f be the function and given by f of x equal to x by root under x square minus 4। so find the domain। तो डोमेन तो सिंपल है, डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इन इक्वालिटी कर्व अगर बनाया जाए, सो दिस विल बी -2, दिस विल बी 2, सो द वैल्यू मस्ट लाई plus minus and plus, so the value must lie, that is minus infinity to -2 से यूनियन 2 to infinity, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच वर्टिकल एसिम्टोट। अब वर्टिकल एसिम्टोट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, एफ ऑफ एक्स वाले की। तो वर्टिकल एसिम्टोट क्या होगा, तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब वाई एक्सिस को किधर जाएगा, तो ये तब पता चलेगा जब x इक्वल टू समथिंग आए। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, +-2, नीचे वाले को 0 कर दिया, सो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2, ये तुम्हारा वर्टिकल एसिम्टोट है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल है, जो वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स का, मतलब हमें y निकालना है, तो लिमिट एंड व्हाट इज़ एसिम्टोट, एसिम्टोट का मतलब है जो गिवन कर्व है वो इन्फिनिटी के तरफ कहीं टेंड कर रहा है कि नहीं। अगर इफ़ इट इज़ टेंडिंग टू सम फाइनाइट वैल्यू दैट बिकम्स अ एसिम्टोट। सो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो x बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4, और ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर, अगर इन्फिनिटी को दें, और अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएं, सो दिस विल बी x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1।
तो वर्टिकल एसिम्टोट क्या, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट क्या क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट आर टू, कौन कौन से एसिम्टोट? एक तो हो गया y इज इक्वल टू 1, एक हो गया y इज इक्वल टू -1. सो दिस आर द टू हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स. अब हमें बोला क्या गया, नेक्स्ट बोला गया फाइंड एफ डैश एक्स. सो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, ये है तो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ऊपर कितना हो जाएगा? पहले रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर छोड़ दो, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, अब एक्स छोड़ दो, और इधर कितना हो गया? 2x बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4. सो 2 गेट्स कैंसल्ड, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? -4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक रूट रहेगा तो पावर 3/2. सो दिस द वैल्यू. अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, सो हाउ द ग्राफ लुक लाइक? सी द क्वेश्चन इज नॉट बीन आस्क्ड बट लेट्स चेक द ग्राफ. सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट और वर्टिकल एसिम्टोट बना लेते हैं. तो वर्टिकल एसिम्टोट कौन कौन सा था? x इक्वल टू 2 -2 एंड x इक्वल टू 2. और वर्टिकल एसिम्टोट कौन कौन सा था? एक था y इज इक्वल टू -1 और y is equal to 1. So there are two asymptotes, y is equal to 1, y is equal to -1, horizontal one. ठीक है. अब एक बात देखो कि फंक्शन कैसा है. सबसे पहले बोला गया था डोमेन. अच्छा, हाउ इज द फंक्शन? -4 बाई एक्स स्क्वायर -4 पर पावर 3/2 है. सो इसका मतलब इसका क्यूब का स्क्वायर रूट है, तो ये वैल्यू हमेशा एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा. सो और इसका डोमेन कहाँ से कहाँ है? -∞ से -2, और -∞ से -2 के बीच में जो वैल्यू आ रहा है वो एबव एक्स एक्सिस, मतलब एबव एक्स एक्सिस आएगा या फिर बिलो आएगा. तो जैसे ही मान लो अगर मैं माइनस से पुट करूँ तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब, और इसके दो एसिम्टोट्स हैं, तो हाउ वुड द ग्राफ बी लाइक? ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा. Similarly, same graph will be symmetrical but on this side. So the graph looks like this. That's all for today. और ये थर्ड लेक्चर कंप्लीट हुआ कैलकुलस का. We'll be seeing more questions in the upcoming session.